بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور اپنا اپنا ہم لوگوں نے سبق جو ہے جو جہاں تک پڑھا ہوا ہے آپ سب نے اپنا ریوائز کیا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے آج ہم اپنے یہ والا پیج ختم کریں گے جو مرکبات یعنی کہ کمپاؤنڈس کا جو ہمارا سیکنڈ پیج ہے، آج ہم یہ اپنا ختم کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سیکنڈ پیج پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک اگر کسی بھی بڑے چھوٹوں میں سے کسی کو بھی اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو یا کسی لفظ کی پہچان نہ ہوئی ہو تو برائے مہربانی آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے، گروپ میں میسج کریں، پرسنل میسج میں آپ نے کرنا ہے، وہاں پہ پوچھیں، سبق سنانا ہے وہاں پہ اگر سنائیں، لیکن الفاظ جو ہیں جو حروف ہیں ان کی پہچان لازمی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس کو کسی اور حروف کے ساتھ کسی اور حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، اور اس چیز کی آپ لوگوں کو پہچان بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی کو بڑے چھوٹوں میں سے کسی کو بھی کسی بھی لفظ کی اگر پہچان نہیں ہو رہی تو انہوں نے لازمی اس چیز کو انفارم کرنا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ایک اور کلاس رکھ کے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقر ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو سب سے پہلے کسی نے سبق سنانا ہے؟ اگر کسی نے سبق سنانا ہے تو وہ سنا دے، ورنہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ چلیں میں ایک دفعہ یہ والا سبق پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے پیج پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ میں جب ساتھ ساتھ جب میں الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہوں تو آپ کائنڈلی اس کے ساتھ ساتھ ادا کیا کریں لفظوں کو۔ تو میں سبق ابھی پڑھنا شروع کروں گا تو آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے۔ الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام جیم، لام الف، با، لام با۔ یہ میں نے بتایا تھا، یہ دیکھیں لام، یہ جو ریڈ کلر میں یہ درمیان میں ایسے لکھا ہوا ہے، تو اس کو الف نہیں پڑھنا، اس کی الف کی پہچان یہ والی تھی، یہ با الف تھا، کیونکہ اس کی میں کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی تھی، تو یہ با الف یہ والا ہے، یہ الف نہیں ہوگا۔ جب اس طرح سے آگے سے گول شیپ بھی آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ آگے گول شیپ ہے، تو یہ با لام ہوگا۔ جب با الف ہو تو وہ صرف یہ اس طرح سے آگے آگے اس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں جڑا ہوگا، تو جب آگے کوئی اور لفظ بھی ملا ہوا ہے اور آگے سے گول ہے تو وہ ہے با، لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف تھا، با، تا، ثا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون صاد، تا ضاد، ثا طا، ثا جیم، تا حا۔ تو یہاں تک ہمارا پچھلا سبق تھا جو ایک جیسے الفاظ تھے، اس کی پہچان میں نے پچھلی دفعہ بھی کروا دی تھی، میں ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں تاکہ ہم آگے چلیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے با اور نون کو دیکھا تھا، دیکھیں جہاں پہ جس طرح سے یہاں پہ با کے نیچے نقطہ ہے
ये अगर आपको मेरा माउस नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। ये है बा अलिफ, या मैं नीचे वाले पे जाता हूँ, वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से पहचान हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। तो जिस तरह से पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बा का एक नीचे डॉट है, ये वाला डॉट देखें, ये नीचे है, ये जो डॉट है, तो ये बा का है। अब यही डॉट अगर ऊपर चला जाए, यही नुक्ता अगर यहाँ पे आ जाए ऊपर वाली साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नून बन जाएगा। एक ही नुक्ता है, बा और नून का एक ही नुक्ता है, लिखा भी एक जैसा जा रहा है, लेकिन फर्क क्या है, बा का नुक्ता जो है वो नीचे वाली साइड पे है और नून का नुक्ता ऊपर वाली साइड पे है। तो ये पहचान है बा और नून की। फिर से देख लें, एक ही नुक्ता है, लिखा भी एक तरीके से जा रहा है, ये बा है और ये नून है, तो इन दोनों का ये फर्क है, बा और नून। उसके बाद हमने जो दूसरी पहचान देखी थी वो क्या थी, जो ये तो एक नुक्ते वाला हो गया। उसके बाद हमने देखा था ता और या। अब उसकी क्या पहचान हमने देखी थी जी, इसी तरह जिस तरह अभी हमने ये नुक्ते देखे हैं, हमने देखा था कि ता के जो दो डॉट हैं या ता के जो दो नुक्ते हैं वो ऊपर हैं। ये देखें यहाँ पे ता के दो नुक्ते ऊपर हैं, लेकिन वही नुक्ते अगर नीचे आ जाएं तो क्या बन जाता है, या बन जाता है। तो ये आप लोगों ने ये भी याद रखना है। देखें नून, ता, या और बा लिखे एक जैसे जा रहे हैं, एक जैसी उनकी शेप है, एक जैसे मिलाए जा रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है। इसी तरह आगे सा भी देखें, सा भी ऐसा ही लिखा जा रहा है, लेकिन उनमें फर्क क्या है, बा का एक नुक्ता है और वो नीचे वाली साइड पे है, बा का एक नुक्ता और नीचे वाली साइड पे। इसी तरह नून का एक नुक्ता लेकिन ऊपर वाली साइड पे, सही। इसी तरह ता के दो नुक्ते और वो भी ऊपर वाली साइड पे, ता के दो नुक्ते ऊपर वाली साइड पे, या के दो नुक्ते नीचे वाली साइड पे, सही। और सा, सा के तीन नुक्ते हैं ऊपर वाली साइड पे। तो ये फर्क आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, क्योंकि अगर ये फर्क याद नहीं होगा तो आगे लफ्जों की पहचान नहीं होगी, लफ्जों की समझ नहीं आएगी। तो एक दफा फिर से मैं बता देता हूँ, बा अलिफ नीचे नुक्ता, नून अलिफ ये देखें ऊपर नुक्ता, ता अलिफ दो नुक्ते ऊपर, या अलिफ दो नुक्ते नीचे, सा अलिफ तीन नुक्ते ऊपर। अब आ जाए जो सा, एक तो हम इसको सा पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं सीन। अब इस चीज का ख्याल रखना है, आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, जब सीन अदा कर रहे हैं तो एक सीटी की आवाज पैदा हो रही है, सीन सीन, लेकिन इसको सा नहीं पढ़ना, सा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको पढ़ना है सा सा। मैंने पहले भी बताया था किस तरीके से पढ़ना है। अपनी जुबान की जो नोक है, जो सामने वाला हिस्सा है, उसको दांतों के दरमियान, सामने वाले दांतों के दरमियान रखें और फिर से करें सा, तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह सीन और स्वाद, इसको स्वाद नहीं करना, स्वाद करेंगे तो गलत हो जाएगा, स्वाद भी नहीं, इसको थोड़ा सा मोटा मुंह ऐसे आप गोल करें और फिर करें स्वाद, स्वाद, ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा पहले वाला सबक था। अब हम अपने अगले पेज पर जाते हैं और यहाँ से इंशाल्लाह हम मजीद अल्फाज की पहचान सीखेंगे। तो जिस तरह से अभी हम पीछे देख के आए हैं, तो अभी ये देखें एक डॉट ऊपर वाली साइड पे, यानी कि एक नुक्ता, ये देखें एक नुक्ता आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने सर्कल किया है, एक नुक्ता और एक डंडी भी है, ये वाली छोटी सी आप देख लें। तो अगर एक नुक्ता ऊपर वाली साइड पे हो तो वो क्या होता है जी, नून, वो होता है नून। इसी तरह एक नुक्ता ऊपर और हा वाली शेप है खा, तो ये क्या बनेगा, खा, नून खा। फिर से पढ़ें नून खा। अब क्या पहचान बताइए नून की, और अ, इसकी पहचान मैंने भी आपको बताई है कि नून के ऊपर वाली साइड पे एक नुक्ता है, सही। इसी तरह आप आ जाएं आगे। अब अभी हमने बताया था, क्या देखा था कि दो नुक्ते होंगे, दो डॉट होंगे नीचे। अब ये जो नुक्ते हैं ये आप देखें, आपको नजर आ रहे हैं,
ये नुक्ते नीचे वाली साइड पे हैं, मैं इनको थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ। एक ये देखें, दो नुक्ते नीचे वाली साइड पे। हाँ जी, तो दो नुक्ते नीचे वाले साइड पे किसके होते थे? जी, या के होते थे। ऊपर वाली साइड पे अगर नुक्ते होंगे दो तो वो ता होगा, और अगर नीचे वाली साइड पे दो नुक्ते होंगे तो वो या होगा। फिर से देख लें, अगर एक नुक्ता ऊपर आ गया है और इस तरह से शेप है, इसकी क्या पहचान हमने बताई थी? एक छोटी सी डंडी या इस तरह से एक लाइन लगी हुई है, ये जहाँ पे मैंने भी पेन रखा हुआ है। तो ये छोटी सी लाइन है और एक डॉट ऊपर वाली साइड पे है, तो क्या बना? नून। क्या बना? नून। इसी को अगर हम इसके साथ मिला रहे हैं तो ये क्या बना? नून ख। नून ख। अब इस लफ्ज पे आ जाए तो एक नुक्ता, दो नुक्ते आ गए आपके नीचे वाली साइड पे, दो नुक्ते नीचे वाली साइड पे और छोटी सी लाइन बनी हुई है, तो क्या बनेगा? या। और या के साथ क्या मिला हुआ है जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है? हा। तो क्या बना? या हा। या हा। अब बिल्कुल जिस तरह पहला लफ्ज पढ़ा है, तीसरे लफ्ज के ऊपर आ जाए, एक नुक्ता नीचे वाली साइड पे। हाँ जी, अब बताएं, एक नुक्ता नीचे वाली साइड पे, वही शेप है, वही एक लाइन बनी हुई है, एक नुक्ता नीचे वाली साइड पे, तो क्या बना? बा। बिल्कुल हमने पहले इसकी पहचान देखी हुई है। एक नुक्ता नीचे वाली साइड पे लफ्ज के नीचे होगा तो क्या कहलाएगा? बा। और साथ क्या मिला हुआ है? जीम। हा, ख और जीम में क्या फर्क है? हा में कोई डॉट नहीं होता। अब ये जो दो डॉट हैं, ये या के हैं, इस लफ्ज के। देखें, हा जो है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है और ब्लैक कलर का कोई डॉट नहीं है, तो इसका मतलब हा का कोई डॉट नहीं होता, ख का एक डॉट होता है। ये देखें, ये वाला जो डॉट है, ये वाला, ये ख का है। तो ख का जो डॉट होता है वो ऊपर वाली साइड पे होता है। इसी तरह जीम का क्या डॉट होता है? जीम का डॉट जो है वो अंदर लिखा हुआ होता है। लफ्ज की शेप वही है लेकिन डॉट अंदर वाली साइड पे लिखा हुआ है। तो ये पहचान है जीम हा खा की। अब इसी तरह ये तीन लफ्ज अगर हम मिला के पढ़ेंगे, एक ही लाइन में हम पढ़ें तो कैसे होगा? नून ख या हा बा जीम। नून ख या हा बा जीम। अब इस लफ्ज पे आ जाएं। अभी तो देखें, अभी तो ये नीचे लफ्ज लिखे हुए आ रहे हैं छोटे छोटे, तो हमें यहाँ से पहचान हो जाती है। तो अगर हम लफ्जों की अच्छे तरीके से पहचान नहीं करेंगे, हमें अल्फाज समझ नहीं आएंगे, तो आगे जब ये अल्फाज नीचे नहीं लिखे होंगे तो वहां से हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब वही दो डॉट नीचे आ गए, बिल्कुल हमें मालूम है दो डॉट नीचे किसके होते हैं? या के होते हैं। तो दो डॉट नीचे या आ गए और साथ ये शेप देखनी है अब आपने। ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये तो ये क्या बन जाएगा? मीम। बिल्कुल ये मीम बन जाएगा। अब मीम को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, जो ये लिखा हुआ है। तो ये या जो है, जो पहला लफ्ज है वो मीम के साथ मिला रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? या मीम। या मीम। यहाँ तक या है, ये जो इस साइड पे है ये या है, और ये वाला मीम है, तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे या मीम। या मीम। अब इसके बाद इस लफ्ज पे आ जाएं, तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये वाला, और इसका ये डॉट है, तो देखें, एक डॉट नीचे वाली साइड पे, एक डॉट नीचे वाली साइड पे किसका होता है? बा का। और उसके साथ ये वाला लफ्ज, ये तो सबको पता होगा, अभी हमने देखा, ये लफ्ज क्या है? मीम। तो बा के साथ क्या मिलाया? बा मीम। बा मीम। एक दफा इसको फिर से देख लें। नून ख या हा बा जीम या मीम बा मीम। हम तीन लफ्ज सिर्फ और देखते हैं नीचे वाले, और यहाँ तक अपना सबक खत्म करेंगे। तो जिस तरह से अभी हमने नून
बा मीम देखा, ये वाला लफ्ज बा मीम देखा, हमें किस तरह पता चला ये बा है? क्योंकि नीचे एक डॉट था तो हमने बताया कि ये बा है। इसी तरह अगर यही डॉट इसी लफ्ज में ऊपर आ जाए और यही शेप हो, तो ऊपर एक नुक्ता एक डॉट किस चीज का होगा? नून का। तो ऊपर एक नुक्ता किसका होगा? नून का। नून मीम, नून मीम। तो ऊपर एक नुक्ता किसका होगा? नून का। और ये वाला लफ्ज तो हमें पता है, मीम। अब वही बात दो नुक्तों वाली, कि दो नुक्ते अगर ऊपर आ जाएंगे, फिर से वो बात आ गई, दो नुक्ते अगर ऊपर आ जाएंगे तो हम सबको याद है अब तो, दो नुक्ते ऊपर ता के होते हैं। ता के दो डॉट ऊपर वाली साइड पे होते हैं और ता के साथ क्या मिलाया हुआ है? मीम। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये वाला एक नुक्ता ऊपर वाली साइड पे, और ऊपर वाली लाइन में आ जाए ये वाला नुक्ता नीचे वाली साइड पे। तो पहले एक नुक्ता आया नीचे, एक डॉट नीचे आया और आगे साथ मीम को मिला दिया, तो क्या बना? बा मीम, ये वाला लफ्ज। उसके बाद वही डॉट ऊपर लिख दिया और शेप भी वही है, तो क्या बना? नून मीम। उसी अल्फाज में उन्हीं शेप के साथ हमने दो डॉट ऊपर लिख दिए, दो डॉट या दो नुक्ते ऊपर आए तो क्या बना? तामीम। फिर से देख लें, बा मीम पहला जिसमें एक डॉट है, नून मीम दूसरा जिसमें एक डॉट ऊपर वाली साइड पे है, और आगे तामीम जिसमें दो डॉट ऊपर वाली साइड पे और आगे ये मीम आ गया। तो ये थी पहचान नून बा और ता की मीम के साथ। अब इसी तरह जिस तरह हमने ये देखा है, ये तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि दो डॉट नीचे या और आगे मीम। इस लफ्ज पे आ जाए तो मैं अगर इस लफ्ज को दरमियान से इस तरह कर दूं, तो पहले तीन डॉट ऊपर वाली साइड पे हैं। कितने डॉट हैं? एक, दो, तीन। तीन डॉट ऊपर वाली साइड पे हैं और एक छोटी सी लाइन या छोटी सी डंडी भी है, एक है। तो एक डंडी और तीन डॉट किस चीज की पहचान है? सा। तो ये क्या लफ्ज है? सा। और सा के साथ क्या मिला हुआ है? मीम। जो हमने मीम ऊपर देखा ये वाला, यही मीम यहाँ पर भी लिखा हुआ, तो ये क्या बना? सा मीम, सा मीम। अब एक दफा हम पूरा सबक दोबारा से देख लेते हैं, और अगर फिर किसी ने सुनाना हो या किसी ने मेरे साथ पढ़ना हो तो बता दे, वरना फिर हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले नून खौ, उसके बाद ये, अच्छा एक एक आप लोग साथ साथ रिवाइज करते जाएं। नून खौ, या हा, बा जीम, या मीम, बा मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम। हाँ जी, किसी ने रिवाइज करना है मेरे साथ सबक? अगर किसी ने करना है तो वो अपना माइक ऑन कर लें और पीछे पीछे पढ़ना है। जी, करना है किसी ने रिवाइज? चलें, यहाँ तक हम अपना सबक कंप्लीट करते हैं। आप सबने यहाँ तक अपने जितने भी पीछे वाले सबक हैं उनको लाजमी रिवाइज कर लेना है, और अल्फाज की पहचान अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर अल्फाज की पहचान नहीं होगी, लफ्ज़ समझ नहीं आएंगे, तो आगे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अपना जो पहले वाला सबक है, यानी कि जो पीछे से हमने जितना भी देखा हुआ है, उस तमाम को रिवाइज कर लेंगे, और जो जितने भी अल्फाज हैं उन अल्फाज की पहचान लाजमी कर लेंगे। क्योंकि देखिए, मैंने पहले बता दिया कि अभी तो हमारे ये नीचे छोटे छोटे लफ्ज लिखे हुए हैं तो हमें समझ आ जाते हैं, जब नहीं लिखे हुए होंगे तब हमें समझ नहीं आएंगे। इसलिए लफ्ज़ों की पहचान बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ की पहचान करवाएं, आप खुद भी पहचान करें, और बच्चों को भी इस चीज़ की पहचान करवाएं, डॉट के साथ, नुक्ते के साथ, जैसे भी उनको समझ आता है उनको इस चीज़ की पहचान करवाएं कि दो नुक्ते होंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली जगह पे होंगे तो क्या होगा। जिस तरह से अभी हमने आज कोशिश की, इसी तरह से उनको कोशिश करवाएं कि एक नुक्ता और दो नुक्ता अगर ऊपर आ जाए, इस तरह की शेप आ जाए तो क्या लफ्ज़ बनता है।
تو میں آخری دفعہ یہ سبق ریوائز کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ نون خ یا ح با جیم یا میم با میم نون میم تا میم تا میم۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو بھی ریوائز کریں گے، پیچھے والا سبق بھی ایک دفعہ دیکھ لیں گے اور آگے بھی سبق کو لے کر چلیں گے۔ تو یہاں تک آپ سب نے اپنا سبق مکمل کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی یہ قرآن پاک پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی دعا کریں، اور ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ تمام احباب سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔